Good morning, students. Today we'll discuss about our next topic, bipartite graph. Okay, bipartite bipartite graph, or it's also called a bi. Okay, so today we'll discuss about bipartite graph. A bigraph G is a graph or a bipartite. Okay, so this is you have to write. Okay, in place of this, because most of the case we use bipartite graph name. Okay, instead of bigraph. So a bipartite graph G is a graph whose point set V can be partitioned into two subsets V1 and V2 such that every line of G joins V1 and V2. Remember that every lines of graph G must be joined V1 and V2. Okay, and vertex set will be partitioned into two subsets V1 and V2. Okay, G is a graph whose V is a set of vertices and V is partitioned, that means V is break into two different subsets. One is V1, another is V2, and all lines, that means all edges of G joins V1 and V2. Okay, so one example I will show you. Here you can see this is the definition of bipartite graph. I will send this in group. You can write a graph G is called bipartite graph if its vertex at V is partitioned into two non-empty subsets x1 and x2 in such that each edges is incident with one vertex from x1 and other from x2. Okay, for example, okay, for example, you can see this is bipartite graph example. V is a set of vertices, and x1 it's one partition of V, and x2 is another subsets of V. Okay, so x1 x2 are the partitions of V, that means two subsets. Okay, and you see this diagram here, V1 and V2. Okay, this edge and this is these are x1 and these are x2. Okay, so this edge, one connected with V1, another connected with V2. Again, this edge, you'll see this edge, it is also connected with V1 V4, one from x1, one from x2. Again, this edge, one from x1, one from x2. This is also one from x1, one from x2. So like this. Okay, so this is the example of bipartite graph. Okay, so I will send this to WhatsApp group. You can write. Okay, so this is the definition of bipartite graph and complete bipartite graph. Okay, a complete bipartite graph is a graph such that there must be one edges between every vertex in x1 and x2. So there must be one vertex, one edges between every वर्टेक्स ऑफ x1 एंड x2. तो अभी इसमें से देखो x1 का जितना भी वर्टेक्स है v1 v4 के बीच में भी है, v1 v2 के बीच में भी एक एजेस है, v1 v5 के बीच में भी है. ठीक है, ये जो है ये x2 का है और ये x1 का है. तो x1 का जितना भी वर्टेक्स है सब और x2 का जितने बड़े सबके बीच में एक एज होना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है सबके बीच में एक एक एज है, x3 to x2, x3 to x4, x3 to x5. So this type of graph it's called complete bipartite graph. Okay, so next we'll see okay, next topic is our syllabus is operation on sheets, operation on graph. Okay, just like union, intersection, all these things. So operation on graphs.
This is operation on graphs. Okay. This is our next topic. Okay, so generally we already got operations union, intersection, inset, and some other operation also we will discuss here. Okay, let's see. The graph G1 and G2 have disjoint points V1 and V2. Okay, disjoint points B1 and V2. V1 is one subset of V and V2 also. Oh, sorry, G1 its vertices are V1 and G2 its vertices are V2. Okay, disjoints, that means दोनों में common element नहीं है. There should be both these joint written. Okay, so and line x1 and x2 line, these are vertices x1, set x1 all vertices of G1, edges of G1, and x2 all edges of G2 respectively. Okay, so their union G is equal to G1 union G2. Okay, and as expected G1 में जो वर्टेक्स होगा वो होगा V, और V1 में क्या आएगा V1 और यूनियन V2 करके जो आएगा वो आएगा V में, एंड x मतलब सेट ऑफ एजेस में आएगा x1 यूनियन x2. ठीक है, सो ये हो गया यूनियन फॉर दिस केस, एंड देयर जॉइनिंग डिफाइंड बाई G1 प्लस G2. तो जॉइनिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं प्लस से, तो G1 प्लस G2 ये दोनों को जॉइनिंग बोलने से, तो ये दोनों का प्लस को रिप्रेजेंट करेगा. इट्स कंसिस्ट ऑफ G1 यूनियन G2, एंड G1 एंड G2 तो होगा ही, प्लस बोलने से G1 G2 आएगा ही, एंड ऑल लाइन जॉइनिंग V1 एंड V2, और जितना भी लाइन V1 एंड V2 को जॉइन करेगा सब आएगा. ओके, यूनियन में. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज this is the diagram of Cartesian product. We know that Cartesian product of two sets, this is one set of vertices, this is one set of vertices. Okay, so if we do Cartesian G1 and G2, ये ग्राफ और ये ग्राफ के बीच में Cartesian प्रोडक्ट करने से तो ये आएगा E1 E1, ये आएगा यहाँ में E1 V2 E1 W2. okay, then V1 E1, this is V1 V2 and V1 W2, sorry. Okay, so this is, we know this Cartesian way of Cartesian product, but this is the graph of Cartesian product. Okay, and this is about compositions of two graph G under bracket G2, or this is G under bracket G2 and this is G2 under bracket G1 graph. Okay, or here this is defined here G1 and G2 Cartesian product, U is equal to E1 comma E2 and V is equal to V1 comma V2, then V is equal to V1 cross V2, then U and V are adjacents in V1 cross V2. Then the product, this similar way I have already given discussed there, so you may read this if required. Now here this is directly given that binary operation on graphs. Okay, so simply if you have to find union G1 union G2, then इसमें क्या आएगा, द पॉइंट्स मतलब वर्टिसेस, और ये है लाइन. तो पॉइंट्स में क्या होगा, G1 का जितना भी पॉइंट्स है प्लस G2 का जितना भी पॉइंट्स है दोनों प्लस हो जाएगा. ठीक है, एंड दोनों का यूनियन करने से लाइन्स में क्या होगा कि G1 का जितना भी लाइन है प्लस G2 में जितना भी लाइन है. ठीक है, that number should be plus. Similarly join बोलने से प्लस आएगा, और प्लस का मतलब है कि पॉइंट्स के केस में तो सेम ही है कि G1 का पॉइंट्स एंड G2 का पॉइंट्स प्लस होगा, बट लाइन के केस में G1 का जो लाइन है वो तो आएगा ही, G2 का लाइन भी आएगा, और दोनों का बीच में जो P1 P2 जो लाइन बनेगा, मतलब G1 का जो पॉइंट्स है और G2 का पॉइंट्स है, ये G1 पॉइंट्स और ये G2 का पॉइंट्स, ये दोनों का बीच में जो लाइन से ये हो जाएगा P1 और ये सब होगा P2, और दोनों का बीच में जो ऐसा टाइप का होगा वो हो जाएगा P1 P2. तो ये लाइन भी आएगा इसमें. ठीक है, रिमेंबर दैट यूनियन में ये लाइन नहीं आएगा, ये वाला लाइन नहीं आएगा, लेकिन G1 प्लस G2 में ये आएगा. ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब अभी मैंने जो दिखाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएगा, G1 में जितना भी पॉइंट्स है और G2 में जितना भी पॉइंट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड नंबर ऑफ लाइन होगा G1 का जो है P1 Q2 प्लस P2 Q1. ओके, सिमिलरली कॉम्पोजिशन के केस में भी, कॉम्पोजिशन केस में G1 P1 P2 ही होगा. पॉइंट्स के केस में कितना पॉइंट्स होगा, इसमें
ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन G1 और G2 में जितना भी पॉइंट्स उसको मल्टीप्लाई कर दो, बट नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या होना पड़ेगा, P1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर P1 Q2 स्क्वायर P1. Okay, so this is all about binary operations on graph. Okay, some example I will show you about union intersection. That will be best for you, otherwise you will get problem to understand. This is the operation on graph. Okay, union. You can see here union of G1 and G2. Okay, G1 and G2 union, like this we have write V G1 union G2 is equal to V G1 union V G2, and E मतलब edges G1 G2 is equal to edge of G1 union edge of G2. Okay, so ये सपोज ये जो है ये G1 ग्राफ है और ये है G2 ग्राफ. ठीक है, तो इसमें क्या है, एजेस ए बी सी डी एंड एज सॉरी ये वर्टिसेस एंड एजेस क्या है, C1 C2 C3 C4. ओके, सिमिलरली ये जो ग्राफ है G2 इसमें है ए बी सी, ये है इसका वर्टिसेस और एजेस है C4 C5 C6. ओके, सो ना दोनों का यूनियन, ये दोनों का यूनियन किया, दोनों का अगर यूनियन किया तो क्या आएगा, यूनियन करने से इसका जो एजेस है ये सब आएगा, देखो ए बी सी डी ये सब आया, फिर इसका भी एजेस आएगा, तो इसमें बी ए तो ये बी डी सी तो बी डी सी, ये दोनों ज्वाइन हो गए कॉम्बाइन. ठीक है, ये कॉम्बाइन होकर ऐसे ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें C1 C2 C3 C4 सेम टू सेम है, C2 C3 C4 C3 C4 और E है सॉरी C नहीं है, और E5 E6. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका यूनियन. ठीक है, तो यूनियन का एग्जांपल, तो दोनों को ज्वाइन करके इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ द ग्राफ. ओके, एंड देन now intersection okay, intersection of graph we will discuss, but before that once you will see this is complement of graph. ठीक है, it is denoted by like this symbol. okay, two vertices U and V adjacent only when they are not adjacent in G. मतलब जब G में हो adjacent नहीं होगा, adjacent मतलब कनेक्टेड नहीं होगा, जब दो वर्टेक्स G में कनेक्टेड नहीं होगा तो उसको G कॉम्प्लीमेंट में कनेक्ट कर देना है. जैसे कि यहाँ में देखो ये जो एक डायग्राम है, ये G1 ये G1 और सॉरी G1 और ये हो जाएगा G1 कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो ये जो ग्राफ है इसमें देखो ये ग्राफ है, तो इसमें सेम टू सेम U V W एक्स वाई जेड इसको ड्रॉ कर लिएगा मैं, U V W एक्स वाई जेड. ठीक है, अभी इसमें जिसमें कनेक्शन है उसमें कनेक्शन नहीं करना है इधर, और जिसमें कनेक्शन नहीं है उसमें कनेक्शन करना है. जैसे कि देखो U और V के बीच में यहाँ में लाइन नहीं है, तो यहाँ में क्या किया, U और V के बीच में एक ऐसा ये लाइन बना दिया. ठीक है, दैट मीन्स एज एक बना दिया. सिमिलरली V और W में नहीं है तो यहाँ में V और W में देना है, U और W में है तो यहाँ में U और W में नहीं देना है, ये एजेस नहीं बनाना है. ठीक है, जिसमें यहाँ में बनाया हो उसको यहाँ में नहीं बनाना है, जिसमें यहाँ में नहीं बनाया है उसको यहाँ में बनाना है. ठीक है, तो ये दोनों में नहीं बनाया हुआ, ये दो बनाया हुआ है, यहाँ में नहीं बनाया है तो इसको बना दिया, इसको बना दिया, इसको बना दिया. ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ इंटरसेक्शन के लिए
Okay, intersection example. This is the example of intersection of two graph. This is V vertices G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू वर्टिसेस ऑफ G1 इंटरसेक्शन वर्टिसेस ऑफ G2, मतलब दोनों में जो कॉमन वर्टेक्स है वही आएगा इंटरसेक्शन में, और दोनों में जो कॉमन एज है वही आएगा इंटरसेक्शन में. ओके, सो दिस इज द G1, दिस इज G2. अभी दोनों में कॉमन वर्टेक्स क्या है, देखो ABC, इसमें कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन एज. ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स क्या है, इसमें AB है. ठीक है, यहाँ में भी AB है, और एज क्या है कॉमन, ये है E3. तो ओनली यही आएगा, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन एज. ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट तो यूनिट 1 में हम लोग इतना ही था. तो यूनिट 2 में जो है वो है कट पॉइंट. ओके, तो कट पॉइंट क्या होता है, कट पॉइंट, और मे भी इसको कट वर्टेक्स भी बोलते हैं हम लोग. तो कट पॉइंट और कट वर्टेक्स इज ए सिंगल वर्टेक्स हुज रिमूवल डिसकनेक्ट द ग्राफ. ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होगा, बाय ऐसा एक वर्टेक्स होगा जिसको रिमूव करने से जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि द कट वर्टेक्स व कट पॉइंट ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ G is a vertex whose removal the number of components increase the number of components whose removal increase the number of components if V is a. तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको रिमूव करने से उसका कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इफ़ V इज ए कट वर्टेक्स ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ देन G माइनस V इज डिसकनेक्टेड. ठीक है, तो V अगर एक वर्टेक्स है ऐसा कनेक्टेड ग्राफ में, कट वर्टेक्स है व कट पॉइंट है, कोई भी ग्राफ में V अगर कट वर्टेक्स है तो उसको अगर ग्राफ से निकाल दिया तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल है, मैं दिखा देता हूँ. इसमें भी देख सकते हो ये जो पॉइंट है इसको अगर हम लोग रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ग्राफ, ये एक सेपरेट हो जाएगा, ये एक सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली ओके, और एक डेफिनेशन में दिखा लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे उसके ऊपर. ये वाला काट एज. ठीक है, काट एज मतलब ऑन काट एज ये क्या है, एन एज whose removal produce a graph with more connected components than the original graph is called a cart edge और bridge. ठीक है, इसका हम लोग कार्ट एज भी बोल सकते हैं और ब्रिज भी बोल सकते हैं. तो अगर कोई एक एज को रिमूव करने से वो ग्राफ डिसकनेक्टेड हो रहा है और उसका मोर कंपोनेंट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्ट एज व ब्रिज. ओके, तो इसका भी एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ. एक मिनट, here
इसमें देखो ABCD ये जो ग्राफ है, इसमें अगर हम लोग BC, ये जो BC है, BC जो एज है इसको हटा दिया एंड BD को हटा दिया, ठीक है, ये दोनों एज को हटा दिया, तो ये जो वर्टेक्स है और ये जो है ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एजेस है, ये सेट ऑफ एजेस को हम लोग बोलेंगे कार्ट सेट, सेट ऑफ एजेस को हम लोग बोलेंगे कार्ट सेट। एंड BD को हम लोग बोलेंगे, ये BD जो है, ये BD को अगर हम लोग ओनली रिमूव कर दिया तब भी ये जो पॉइंट है ये इसमें से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग, तो इसलिए BD को भी हम लोग एक ब्रिज बोलेंगे। ब्रिज मतलब ऐसा लाइन जिसको रिमूव कर देने से ये ग्राफ जो है इसमें मोर कंपोनेंट्स आ जाएगा व डिसकनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो BC भी एक ऐसा है कि BC जो लाइन है, BC को भी अगर हम लोग यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये एक कंपोनेंट, ये जो है ये वाला सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा, तो मोर कंपोनेंट आ जाएगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है ये भी एक ब्रिज है, ठीक है। तो ब्रिज मतलब जिसको रिमूव कर देने से टोटली डिसकनेक्टेड हो जाएगा ग्राफ। जैसे कि यहाँ में भी दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसको अगर हम लोग, ये लाइन को अगर हम लोग रिमूव कर दिया तो ये दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाएगा, तो ये भी एक ब्रिज है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ब्रिज। ओके, तो इस एग्जांपल में भी देख सकते हो कि इसमें ये कार्ट सेट के बारे में डिस्कस किया है, ACDF। इसमें से अगर ये लाइन ACDF ये चार को अगर हम लोग रिमूव कर दिया तो ये जो है ये एक सेपरेट डायग्राम बन जाएगा और ये एक सेपरेट बन जाएगा। तो ये जो है ये जो सेट ऑफ एजेस है इसका हम लोग बोलेंगे कार्ट सेट, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है कार्ट सेट का। B और E को अगर रिमूव कर दे तो ये भी डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है। ओके, सो तो इसमें और एक चीज़ है कि ये जो है KG1 और ये λG2 एंड ΔG3, ठीक है। इसमें है कि ये है वर्टेक्स, ठीक है, जिसको मतलब ये एक लॉ है कि KG इज़ लेस देन λG इज़ लेस देन ΔG, ठीक है। तो मतलब ये KG जो है ये मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स है जिसको एलिमिनेट करने से, रिमूव करने से ग्राफ दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो देखो ये ग्राफ में ये जो पॉइंट है इसको ब्रेक कर देने से, इसको एलिमिनेट कर देने से ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो ये मिनिमम नंबर कितना है, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, बट मिनिमम बोला है। ये KG का मतलब है मिनिमम पॉइंट्स, कितना मिनिमम पॉइंट्स इसको हटाने से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट हटा देने से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो KG1 का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि एक पॉइंट हटाने से ही ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर एक पॉइंट नहीं होता तो दो पॉइंट हम लोग हटाने ट्राई करता तो 2 होता मिनिमम, बट यहाँ में एक में ही हम लोग को मिल गया, तो इसलिए 2 में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी λG2 इसमें मतलब है कि कितना वर्टेक्स हम लोग रिमूव करने से ये डिस्कनेक्ट होगा, वर्टेक्स नहीं सॉरी एजेस। तो इसमें देखो ये जो एज है और ये जो एज है ये दोनों को अगर रिमूव कर दिया तो ये ग्राफ सेपरेट हो जाएगा। तो इसलिए मिनिमम 2 एज को सेपरेट कर देने से ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये है मिनिमम डिग्री ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो डिग्री ऑफ वर्टिसेस इसमें देखो ये पॉइंट का वर्टेक्स कितना है 1, मतलब डिग्री कितना है 1 2 3, इसका 1 2 3 4, ठीक है, इसका 1 2 3
1 2 3 सभी का 3 हो रहा है, तो मिनिमम कितना है डिग्री, कोई भी वर्टेक्स ले लो इसमें मिनिमम डिग्री कितना आएगा 3 आएगा। 3 से ज़्यादा है, इसका तो 4 डिग्री है, तो मिनिमम डिग्री कितना है 3। तो देखो ये इसका वैल्यू इससे छोटा है और इसका वैल्यू इससे छोटा है, तो यही एक थ्योरम है कि के जी इज़ लेस देन लैम्डा जी इज़ लेस देन डेल्टा जी। Okay, so this is all about today's class. Remaining we will discuss in our next class. So thank you everyone. Next class we will